जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम अगेन। एक्ट वन, सीन टू। अगर हम इसका पिछला रिव्यू करें कि व्हाट हैज़ बीन वी हैव ऑलरेडी बीन come to know studied, so in the previous section we have read that how Dr. Foster was getting into his study room and is meditating about his previous knowledge, what he has learned so far, right? As you know, he meditates. He was sitting in library room, checking his books. First of all, he came to know about the books of philosophy. He says that okay, this satisfies me. Why? Because this satisfies me. Why? Because I have already learned a lot about philosophy. I have beaten a lot of philosophers, right? All the German philosophers comes over to me to discuss what is this matter, what is the other matter. So I have already been learned this perfection in this art. Then he come to know about the medical science. He says that where philosophy ends, medical science starts. Then he says that I have learned a lot about this, right? तो it means that in the previous plague समझते ना आप, उसमें जो बहुत बड़ी एक कहत आया था, वो कहता है कि I have taught a lot of people about their medications, right? वो कहता है कि मेरे जो नुस्खे थे वो बहुत ज़्यादा बिकते थे, वो बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना, बट वो कहता है कि one thing which I missed, I couldn't make the people immortal. मैं किसी को क्योर तो कर सका फ्रॉम इट्स हेल्थ, फ्रॉम इट्स डिजीज, बट couldn't make him immortal. So I want immortality. I want such a knowledge which give me a secret about all the universe. So he again dissatisfied. Now he comes to the law. He says that no, it is always dissatisfied. This always appeal to the people who loves money making, but he says that I am in the habit of seeking power, not in the money making. So he says that this also dissatisfied me because it always law always deal with the petty issues, like the way person can, no father can disinherit his son. So all these things are not uh, suitable for me. Then he comes toward the other fourth and last knowledge about the theology. Theology means दीनियात. तो theology के अंदर वो ये बताता है कि जो every wages of sin is death, right? So this is the crux of all the religious matters. So he says that this is all no, who is the person who does not commit any sort of sin. So therefore I do not like this again, because everyone has to commit sin and have to face death. So all these knowledge are not fields of knowledge are not for him. So then he calls out his servant Wagner. He says that I am meditating from the time being about the magical power he want to seek. So he calls upon and he says that please send for my two friends Waltz and Cornelius, who always exhort me to take up this field of knowledge. So अब जो है ना Wagner goes there. He again making his resolve. In his resolve, he says about meditates about some positive as well as negative things. So in this way, we see that uh, जो है ना वो he is meditating. What will he do after acquiring power? First of all, his desires are thoroughly selfish. He says that if I acquire this knowledge, so I would do so and so, means ke he would like to have satisfied all his sensual desires. And other than that, he also thinks about the poor people relating to the German schools. He says that I would clad them into costly uniforms. So there are certain positive. Why? Because as you know, जैसा कि हमें पता है कि जो एक आइडियल करेक्टर होता है उसके अंदर चार क्वालिटीज होती हैं. एक होती है गुडनेस, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्रिटिसिज्म, गुडनेस, अप्रोप्रिएटनेस, लाइकनेस एंड कंसिस्टेंसी. तो इसके अंदर गुडनेस थोड़ी शो करवाई गई है. Why? Because this person, although we know that he's an atheist, it doesn't accept any sort of God scripture, God message, or his messenger, right? So he has abjured or rejected everything relating to this, but still he is having a good mindset about the social society. So therefore, in toward the end of his day, when he would be feeling very miserable and his time of his uh, deal would be done. So what will happen then?
we will definitely the writer will be able to evoke feeling of pity and fear. Why? Because this is a tragic comedy, as you know. Philip Sidney, Aristotle stress upon the need of tragic elements, but here Marlowe, as you know, I have already told you in my previous lectures that Marlowe was a father of modern drama. Modernity starts from 16th century. Marlowe introduced such a character. As you know, this character is belonging to a very middle humble origin, right? He became powerful through his knowledge, but still he declines, right in the manner of Icarus. आपको पता है कि उसका ओपनिंग हमने उसको अच्छी तरह डिस्कस किया था पिछली लेक्चर में. तो इन द वेरी ओपनिंग पेज of it, he also relate this incident to the mythology of इकारोस, लाइक डेडलस जो है ना वो एक आर्टिफाइसर था जिसका बारे में हमें पता भी है. तो लाइक इकारोस उसके भी वैक्सन विंग्स उन्होंने इन्वेंट कर लिए. दे ट्राई टू ओवरफ्लाई एंड इन एन अटेम्प्ट टू दिस he has actually been declined and his wings melted and he was thrown into. Similarly, his knowledge, he was very boastful. His knowledge, he has certainly acquired a lot of power of his knowledge. Why? Because he was multi-talented person, but still he lacks in his rational abilities, like the way he became proud of his knowledge and he contracted devils and unable to find any way which was right track. तो टुवर्ड द एंड ऑफ द डे अब ये होगा कि ये पछता रहा होगा. तो इसलिए हमारे अंदर ये करेक्टर के अंदर जो है ना गुडनेस ये डाली गई है. जो मैं बता रहा था कि देर आर सर्टन फोर करेक्टर्स फीचर्स होते हैं किसी भी ट्रेजिक हीरो के अंदर: गुडनेस, अप्रोप्रिएटनेस, लाइकनेस एंड कंसिस्टेंसी. तो इसके अंदर गुडनेस है, ये देखें दूसरों के बारे में भी सोच रहा है अदर देन हिमसेल्फ. सो उसके बाद अप्रोप्रिएट भी है ये कि मतलब डेफिनेटली ये रिनाइसेंस एज के अंदर जो थे पीपल वर सीकिंग फॉर पावर, दे वर जो है ना वो नॉलेज, और ये नॉलेज की बेस के ऊपर लोगों के ऊपर ऊपर ना सिर्फ लोगों के ऊपर बल्कि वो नेचर के ऊपर भी रूल करना चाहते थे. तो इस तरीके के साथ इसके अंदर अप्रोप्रिएट भी है, बिल्कुल मौजू भी है ये करेक्टर. और लाइकनेस, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग ही आल्सो बिकेम greedy and thus has to face his decline. Similarly is consistent. तो कंसिस्टेंटली या तो राइटर जो करेक्टर होता है आइडियल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है. तो ये बंदा भी इनकंसिस्टेंट है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा. और हम देखेंगे कि जब ये डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बैठेगा और उसके बार्गेनिंग में ये 24 साल की सेंशुअल लाइफ जो है ना गुजारने के सिलसिले में ये बहुत ज्यादा डिविएट हो रहा होगा अपने स्टांस से. तो हम देखेंगे फिर टुवर्ड द एंड ऑफ द डे हमें फीलिंग, बिकॉज द फंक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी इज टू इवोक फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर. सो हेयर जैसे कि मैंने बताया उसके बाद ये होता है कि वो लोग आ जाते हैं. ही मेक्स हिज रिजॉल्व, ही पुट अप हिज केस राइट इन फ्रंट ऑफ देम. वाल्टर कॉर्नेलियस, दे टेम्प्ट हिम, दे से ओके यू आर गोइंग ahead, you need to go ahead. Why? Because you are a perfect candidate for becoming a successful magician, so you need to go ahead. So they give him a call sign, green signal. So in this way he was very curious to learn this art and want to master this art within no time. So he became very anxious to do his magical tricks and then he applies his magical tricks. तो वो हमारे इस आज वाले सेंटेंस में आ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर. तो इसमें आपने देखा होगा पिछली दफा कि हमने देखा कि ये जो है ना बंदा जब जो है ना ये डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है. तो आज हम एक्ट 1 इसका सीन 2 जो है इसका ये पढ़ेंगे. तो उसमें एक छोटा सा कॉमिक सीन है. ट्रेजेडी और कॉमेडी गो साइड बाय साइड. तो ट्रेजिक सीन के साथ ये थोड़ा सा हमें ना ह्यूमरसली ले आता है. तो मैंने बताया था कि मार्लो इन्वेंटेड invented such a tragedy, right? In which Shakespeare followed his footsteps and became very famous, right? So he introduced a middle class character. He introduced tragic comedy. So all the features were also found in Shakespeare as well. So here we see another scene which comes up in a very humorous tone, but still under it has also few undertones of tragedy as well. Like the way इसके अंदर वो ये बता रहा है कि Act 1 Scene 2. फर्स्ट कॉलर एक्चुअली यहाँ पर ये होता है, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ पहले, फिर इसके टेक्स्ट को हम एनालिसिस कर लेंगे. In the scene 2, this is a very comic scene and only 3 characters are found in this very short brief scene in which Wagner is being called upon by 2 of his scholars, right? Colleagues उसके आते हैं वहाँ से विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से और वो आगे पूछते हैं कि वेयर इज डॉक्टर फॉस्टस. बट जो वैगनर होता है उसका सर्वेंट
वो आगे से बूस्ट अप करता है, वो आगे से उनको जो है ना उनको सेटराइज करता है, उनको मजाक करता है और मजाक में बात डाल देता है। और वो कहता है कि अगर आपके अंदर कोई कॉमन सेंस हो तो यू कुड अंडरस्टैंड, गॉड इन हेवन नोज। मतलब पहले तो इस तरह का ये जवाब देता है, फिर आगे से और बातें बनाता है, और आखिरकार बड़ा एग्जैजरेट करने के बाद ये बता देता है जी कि मेरा जो मेरा मास्टर है, ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर with two of his friends. When he mentions about two his friends, so they become very dubious, they become very doubtful about their character, and he says जो दो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हमें जाके यूनिवर्सिटी के रेक्टर से बात करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज टेकिंग पार्ट इनटू अ वेरी नेफोरियस एक्टिविटीज, सो वी नीड टू मेक समथिंग रेडिकेट फॉर सच हिज एक्टिविटी। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मैं अब थोड़ा डिटेल जो 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 इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बयान कर देता हूँ, ताकि हम उससे फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा आप भी सुनो। I wonder what has become of Foster's that was want to make our schools ring with sic probo. Our first scholar is expressing his surprise. Okay, where is that person? His absence is actually haunting us. So that person sic नहीं, probo. What do you mean by सीक प्रोबो? सीक प्रोबो का मतलब होता है आई प्रूव इट दस, मीन्स वो कहता है कि बहुत ही क्या कहेंगे कि एक्नॉलेज किस्म का जो फिलोसफर था वो आज मिसिंग है, तो वेयर इज ही, तो ही इज फीलिंग हिज एब्सेंस। द सेकंड स्कॉलर, दैट शैल वी नो, फॉर सी हेयर कम्स हिज बॉय। वो कहता है कि अब हम जान लेते हैं उसका सर्वेंट आ रहा है, हम उससे पूछते हैं। एंटर वैगनर कैरिंग द बॉटल्स ऑफ वाइन। फर्स्ट कॉलर, हाउ नो सिरा, वेयर आर दाई मास्टर। कहता है कि हाउ आर यू फेलो, वेयर इज योर मास्टर। वैगनर, गॉड इन हेवन नोस। वो कहता है कि अल्लाह अपने जन्नत में जानता होगा जो आसमानों पे रहते हैं। सेकंड स्कॉलर, व्हाई डजंट दो नो। वो कहता है कि इफ गॉड नो सो व्हाई डोंट डू। वैगनर, यस आई नो बट दैट फॉलोज नॉट। मीन्स वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि आई एम नॉट योर सब सर्वियंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट एंड आई कैन नॉट अबाइड बाई योर इंस्ट्रक्शंस कि व्हाट यू वुड यू डू एंड व्हाट यू वुड नॉट, शुड आई नॉट। सो इन दिस वे वो थोड़ा सा आगे से ना बात को एग्जैजरेट करेगा, थोड़ा सा मजाक करेगा। First caller, go to Sira, leave your jesting and tell us where is he. कहता है कि प्लीज ये मजाक छोड़ो, we have here to meet him, so please tell us where is Dr. Faustus. Wagner, that follows not necessarily by force of argument that you being a licentiates, licentiates means मतलब graduates, you have taken a degree of university, मतलब it doesn't mean कि तुम मुझे ना हम मुझे harass कर लोगे by virtue of your knowledge, कि मतलब वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है, should stand upon it, therefore acknowledge your error and be attentive। वो कहता है कि you need to जो है ना accept concede your defeat before me and you need to submit before me, मीन्स कि उनको आगे से बदतमीजी कह लें आप, थोड़ा सा नॉनसेंस या मजाइया टॉकिंग कर रहा है। सेकंड स्कॉलर, व्हाई डिडंट दो नॉट से दो नोज। कहता कि फिर तुम जानते, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम जानते नहीं हो, जब मुझे ये कह रहे हो कि मतलब जो है ना। वैगनर, हैव यू एनी विटनेस ऑन इट। तो कहता है कि तुम कोई गवाह है। फर्स्ट, यस सिरा आई हर्ड यू। कहता है कि दूसरा कहता है मैंने सुना है। बट आस्क माई फेलो इफ आई बी अ थीफ। तो वो कहता है कि वैगनर कहता है ये तो वही बात होगी ना कि चोर चोर की गवाही दे रहा है, उसकी तो कबूल ही नहीं होगी। सेकंड स्कॉलर, वेल यू विल नॉट टेल अस। कहता है कि ये प्लीज आप हमें ये ना बताओ, हमने जो बात पूछी है, स्टिक टू द टॉपिक, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। वैगनर, ओके सोलमली। अब देखिए ये यहाँ पर इस स्पीच के अंदर बड़ा एग्जैजरेट करता है, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। यस सर आई विल टेल यू, येट इफ यू वर नॉट डोंसेस यू वुड नेवर आस्क मी सच अ क्वेश्चन। कहते अगर आप तुम बेवकूफ ना होते, स्टूपिड ना होते, तो मुझसे ये क्वेश्चन ना करते। फॉर इज नॉट ही कॉर्पस नेचुरल। कहते डोंट यू थिंक ही हैज अ बॉडी, वजूद तो होगा ना, उसका बॉडी होगा। तो कहता है कि फिर व्हाई डोंट यू फील इट्स प्रेजेंस एंड इज नॉट दैट मोबाइल, और वो क्या मूवेबल नहीं है उसकी बॉडी। देन वेयर फोर शुड यू आस्क मी सच अ क्वेश्चन। तो फिर वो कहता है कि फिर आप लोगों को मतलब वो इधर उधर तो जा ही सकता है ना, तो आपको इतना मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, डेफिनेटली अगर वो यहाँ नहीं है तो कहीं तो होगा। तो इन दिस वे ही इज एग्जैजरेटिंग, बट दैट आई एम नेचुरली फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मीन्स कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने वाला हूँ। स्लो टू ट्रैथ, कि आई एम नॉट प्रोन टू लीचरी, मीन्स कि मैं बहुत गुस्से में जल्दी नहीं आता, और मैं ना ही इतना ग्रीडी हूँ। it was not for you to come within 40 foot of the place of execution. अब actually he is hinting at कि you are within the range of 40 foot circle of Dr. Foss's presence. So यहाँ पर वो ये बता देता है, और उसके बाद जो है ना जो है ना वो ये बताता है
Thus, having triumphed over you, I will set my countenance like a precision and begin to speak thus. अब वो बड़ा बना रहा है, वो कहता है देखो जी मैंने आपको मतलब आपकी वीट को आउटविट कर दिया, राइट। तो उसके बाद वो बता रहा है कि मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये ट्रूली माय डियर ब्रदर, माय मास्टर इज विद इन एट डिनर with Walls and Cornelius. अगर ये बात आराम से बता देता तो has actually in this scene the writer has created comic scenes. Okay, so therefore अब यहाँ पर वो आसानी से बता देता, there would have been no ambiguity, there would have been no problem at all. So with Walls and Cornelius at this wine, if it could speak, it would inform you your worship, and so Lord bless you, preserve you and keep you my dear brother. और इस तरह बड़ा ज़रा एग्जैजरेट कर रहा है, और हालांकि बात छोटी सी थी कि मेरा बॉस जो है he is still in जो है ना in the proximity of this building. So उसके बाद first caller become very surprised to see the what sort of company has he adopted, and in this way he became apprehensive and he want to inform about all this about the rector. He says that even though यहाँ पर थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे हैं कि मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर कंपैशन है, ब्रदरहुड है, लव है, तो ये चीज वो कहता है कि इवन दो ही वुड बी अ स्ट्रेंजर टू मी, तो आई वुड नॉट बॉदर टू सी सच पर्सन अडॉप्टिंग such a bad company. So he says that I would go there instantly towards rector and informs him all about the nefarious activities newly adopted by Dr. Foster. So in this way they quit. And then आपने देखा जो पिछला कॉमिक थोड़ा सा ट्रेजिक सीन्स था, उसको थोड़ा सा उसने ना मेकअप किया और उसके साथ एक ह्यूमरस सीन डाल दिया। अब यहाँ पर एक्ट सीन 1 सीन 3 इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली पहले बताऊंगा, एंड देन आई विल नरेट फ्यू टेक्सचुअल एनालिसिस के व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लाइंस अबाउट इट। यहाँ पर भी अब फोर्सेस जो है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्स एंड कॉर्नेलियस इन द scene 1, he has taken all the goods which they offered him to take up. So he went there into the secluded corner in the jungle, in the center of the jungle. He abide by all the instructions and see the जो है ना, उसके बाद वो सारा करने के बाद वो मैजिकल ट्रिक कंज्यूर करता है, ठीक है जी। उसके बाद वो कुछ लाइंस ऐसी बोलता है जिसके जरिए जो मेफिस्टोफिलिस नामी एक डीवल है दैट अपीयर्स emerges. But when the very instance, Dr. Fawcett feels his face very ugly. He says that, okay, you are having very obnoxious face, you are ugly, so you need to change your shape. So when Mephistopheles abide by his instructions, so he became very flattered by from inside. He became he was come to know that definitely I have sought a biggest power of magical tricks, so in which I can be I have been be able to make this spirit abide by my instruction. So he follows, he says that कि तुम्हें जो है ना फ्रांसिस्कियन फ्रायर के वजूद में आना चाहिए और तुम जो है ना यहाँ से निकल जाओ और तुम जो है ना जल्दी से अपनी शेप चेंज करके हो। वो करके आता है तो इससे वो मतलब जो है ना फिर वो मेफिस्टोफेलिस आस्क्स अ फ्यू क्वेश्चंस, ही सेज दैट हाउ हैव यू कम, तो वो उसके बाद वो उससे बताता है कि आई हैव जस्ट कम पार्शली बिकॉज, कहता है हैवंट यू कम अबाउट माय इंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद लूसीफर के बारे में पूछता है, थोड़ा हेल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और फिर वो ये पूछता है कि हाँ जी आप कैसे आए हो, कैसे आना हुआ। तो वो कहता है कि मैं जो आया हूँ यहाँ पर सिर्फ उस इसलिए आया हूँ कि लोग जो हैं, जो लोग अब्जूर कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं हॉली ट्रिनिटी को, ट्रिनिटी समझते हैं, थ्री गॉड, मैसेज, उसका हॉली बुक एंड इट्स मैसेंजर मींस प्रॉफिट, राइट। तो वो कहता है कि जो कोई भी बंदा इसको कर देता है तो वही कम हेयर टू टेक अप इट्स ग्लोरियस साउंड। ये ग्लोरियस का भी नाम है, ये आयरनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरनी? आयरनी मीन्स के जो चीज़ जो दिखाई जाए या बोली जाए या कही जाए, क्योंकि वर्बल आयरनी भी होती है, इसकी टाइप्स भी होती हैं, तो मतलब जो कहने में कुछ और हो और उसकी हकीकत कुछ और हो। तो यहाँ पर ग्लोरियस सॉल देखे ना, हालांकि डैम्ड सॉल है उसको वो ग्लोरियस सॉल कहता है। वो इसके बाद वो कहता है कि हम तो उसकी सॉल्व करने के पीछे हमेशा रहते हैं। तो आगे चल के नेक्स्ट सीन में ये भी क्वेश्चन करेगा कि ये सॉल इसने करनी क्या है, लूसीफर ने, आपका जो बॉस है या जो सैटन है। तो वो कहता है कि डेफिनेटली जब इंसान एक वरी में होता है तो ही वुड लाइक टू अडॉप्ट अदर पर्सनस कंपनी, सो इन दिस वे इट गिव्स हिम स्लाइट अमाउंट ऑफ सॉलेस। सो आगे जाके इसका ब्रीफली अगर थोड़ा सा और भी इसको हम डिस्कस करें तो फिर देखते हैं। तो उसके बाद वो क्वेश्चन वगैरह करता है, वो कहता है कि तुम हेल से नहीं आए हो, तो वो कहता है कि हाँ हेल ही है।
वो कहता है कि हेल, ये वो कहता है आई एम नॉट आउट ऑफ हेल इवन हेयर। कहता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, वी हैव seen that, we have heard that the hell has been confined to a limited scale. How is it possible that you are out of it? वो कहता है कि you don't know about the my जो है ना state of mind. तो उसको वो कहता है कि we have seen actually we were rebels, we were angels right in front. तो हमने जो एक रिबिलियन की है उसके जरिए हमें जो है ना एक्सपेल किया गया है, राइट, फ्रॉम द हेवन टू हेल. सो वी आर वेरी रिपेंटेंट, वी आर रिमोर्सफुल अबाउट आवर डीड्स, व्हाट हैव वी डन. सो ही बिकेम वेरी रिपेंटेंट एट दैट. हाउएवर, फॉर अब ये आयरॉनिकली ये है कि अभी चूंकि इसने डीवल ने के साथ डीवल ने के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ही मेक हिम वेरी ब्रेव, हिमसेल्फ ब्रेव. ही सेज के you need to learn this art, you are very cowardly, you are behaving very cowardly. So अब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ये आर्ट सीखनी चाहिए. आई एम अ फॉस्टस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम हियर विद बोल्ड फेस टू कम टू रिजेक्ट ऑल दीज थिंग्स. तो व्हाई आर यू सो मच वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स? सो इसके बाद जो है ना, उसके बाद वो अपनी फिर एक इंटेंशन रखता है सामने, वो वाली वही वाली 24 साल वाली. वो कहता है कि यू नीड टू गो टुवर्ड्स लूसीफर टू सेंड माई मैसेज and ask him to grant me a life of 24 years of voluptuousness, in which I would like to satisfy my all my sensual satisfaction, right? So jo whatever I demand, so if you do this, so I will surrender my soul after the completion of my time period. So जो मेफिस्टोफिलिस होता है, से ओके गुड बाय, आई विल कम अप विद अ रिप्लाई अगेन. सो ये इसके अंदर जो है ना, यही क्रक्स है इसका. अब अगर इसके में कोई जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम इससे अगला सीन भी डिस्कस करेंगे. अब देखें ये वाला जो ट्रेजिक सीन आया, इसके अगला जो फ्लो होगा वो नेक्स्ट क्या होगा, फिर उसमें कॉमेडी कॉमेडी डाल दी जाएगी, फिर वो एक और करेक्टर के बाद उसे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स यही है, आज आई चार्ज दी टू रिटर्न एंड चेंज दाई शेप, दो आर टू अगली टू अटेंड ऑन मी. अब यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर जब उसे ये कहता है ना कि तुम जाओ, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें कि जाओ और वापस आओ, और जो दो आर टू अगली टू अटेंड ऑन मी, कहता है कि तुम इतने अगली हो कि तुम मुझे अटेंड नहीं कर सकते, सो प्लीज गो बैक, गो एंड रिटर्न एन ओल्ड फ्रांसिस्कन फ्रायर, दैट होली शेप बिकम्स अ डिवल बेस्ट. वो कहता है कि जो है ना तुम जाओ और जाके जो है ना अपनी शेप चेंज करो, बिकॉज फ्रांसिस्कन फ्रायर. अच्छा ये देखें यहाँ पर अगेन जो है ना रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट जो है ना ये बातें की गई है ना. फ्रायर जो होते हैं आपको पता है ये यंग प्रीस्ट होते हैं, तो वो कहता है उसकी शेप में आओ. तो यहाँ पर भी थोड़े से कॉनोटेशंस हैं कि जो टेक्स्ट के अंदर वो मतलब उनको स्ट्राइस किया गया, जैसे मैंने बताया था कि पोप को भी ये आगे जब ये डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ड्यूली साइन कर लेगा, तो फिर पोप को भी थोड़ा करेगा. तो इनकी मतलब रिलीजियस, क्योंकि ये बंदा खुद भी मार्लो जो था, मैंने कहा था इसकी पर्सनैलिटी जो है डाउटफुल है. ही वाज किल्ड विद ऑन हिज लव अफेयर विद एंड हिज राइवल किल्ड हिम. तो उसके बाद इसको एमए की डिग्री भी नहीं दी गई थी, ठीक है जी, इसको रोक ली गई थी, बीइंग ही वाज चार्ज एज एन एथियस्ट. तो सिमिलरली हिज वर्क आल्सो रिफ्लेक्ट द सेम थिंग. उसके बाद अगर इसमें इसको इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो अब यहाँ पर जब फॉस्टर से बैक करता है, आई चार्ज दी वेट अपॉन मी व्हाइल आई लिव टू डू वट एवर फॉस्टर शैल कमांड. कहता है कि जब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे ऊपर तुम अटेंड करो मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ, टू डू वट एवर फॉस्टस शैल डिमांड, और जो भी आपसे डिमांड करे फॉस्टस, बी टू मेक द मून ड्रॉप फ्रॉम हर स्फीयर और द ओशन टू ओवरवेलम द वर्ल्ड. कहता है कि कम बट मे, it can be the possible impossible deed even like the way. वो कहता है कि मैं कहूँ कि मून जो है उसको उसके कुर्रा से निकाल के ले आओ, या ओशन को ओवरवेलम कर दो पूरी दुनिया के अंदर, तो जो कुछ भी मैं कमांड करूँ उसको आपने अबाइड बाई करना है. आगे ये देखें, इसके बाद जो है ना जब वो उसे ये पूछता है कि तुम मेरे जो मैजिकल ट्रिक है इस वजह से नहीं आए हो, वो कहता है दैट वाज अ काज बट येट पार एक्सीडेंट्स. ये मेफिस्टोफेलिस बोल रहा है जी. For when we hear one rag the name of God, abjure the scriptures and his savior Christ. जैसे कि मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, वो कहता है कि जो डेफिनेटली जो बंदा ये काम करता है, होली स्क्रिप्चर्स, गॉड और उसके मैसेंजर को रिजेक्ट करता है, we fly in hope to get his glorious soul. तो ये वाली लाइन्स है जो मैंने बताया था कि इसके अंदर आयरनी का भी एक एलिमेंट आ रहा है. तो आगे जो है ना इसमें अगर इंपॉर्टेंट लाइन्स हो, दिस वर्ड डैमनेशन टेरिफाइज नॉट हिम फॉर ही कंफाउंड्स हेल इन एलिजियम. कहता है कि अब देखो
फॉस्टस खुद कह रहा है उसको, कहना कहना चाह रहा है कि देखो डैमनेशन चाहे नहीं हो जाए ना, मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम पता नहीं क्यों मतलब इतना ज्यादा रिपेंटेंट हो रहे हो, रिमोर्सफुल हो रहे हो, तो उस चीज का पछतावा क्या जिसको आप दोबारा गेट रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसलिए आपको इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उससे वो पूछता है कि लूसीफर कौन है, तो मेफिस्टोफेलिस जवाब देता है आर्च रेजेंट एंड द कमांडर ऑफ ऑल स्पिरिट्स। कहता है कि ये चीफ डीवल है, राइट, और ये कमांडर है जितने भी स्पिरिट्स हैं हमारी हेलिश। उसके बाद फॉस्टर पूछता है व्हाट आर यू दैट लिव विद लूसीफर, हु तुम कौन हो, अनहैप्पी स्पिरिट दैट फेल विद लूसीफर। जैसे कि हमने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर भी इसका इंसिडेंट है ये वाला कि हाउ द वॉर रेजेस बिटवीन गॉड एंड एंजल्स एंड हाउ द एंजल मेक rebellion against the god and all these things and are forever damned with Lucifer। मतलब कि मैं वही हूँ, I was also one of his companions who fell along with Lucifer and we were thrown into the hell and I am one of them। उसके बाद ये पूछता है कि तुम जो है ना हेल कहाँ पर है, तो वो कहता है कि हेल हर जगह पे मौजूद है। तो उसके बाद जो है ना वो अपने वो डीड बताता है, वही वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। आगे हम जो है ना इसके बारे में बता देते सीन 4 जो है इसका डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने बताया अब देखें वहां से हमें पता चल रहा है कि ये बंदा जो है गिरता जा रहा है, हालांकि अपनी तरफ से वो अपने उस नॉलेज में अपने उस जो मैजिकल ट्रिक्स के अंदर एक्सेल करता जा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड ही इज गेटिंग डाउन, राइट। तो ये यहाँ पर ये ट्रेजिक सीन के बाद एक नया कॉमिक सीन आ गया, इसके अंदर जो है ना दो करेक्टर्स हैं ओनली, और इनके अंदर फार्स फार्स समझते हैं कॉमेडी की एक शक्ल होती है जिसके अंदर फिजिकल जेस्चर का सहारा लिया जाएगा। यहाँ पर ये होगा कि एंटर वैगनर एंड क्लाउन। क्लाउन समझते हैं जो क्या कहते हैं कि मस्खरे होते हैं, और उनको भंड भी हम कह देते हैं पंजाबी में। तो वैगनर से सॉरी वैगनर से ये कहता है कि प्लीज परफॉर्म अ मैजिकल ट्रिक फॉर मी, आई हैव a certain amount of book out of which I can call out any sort of spirit, but as you know he makes fun of him। जो क्या नाम है उसका क्लाउन होता है, he keeps on making fun of him and he does not abide by his instruction। तो उसके बाद जो है ना वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जो है ना जो है ना इतने पैसे दूंगा, तो वो कहता है तुम बहुत गरीब हो, तुम मुझे क्या दोगे, यू आर पेनीलेस। तो वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मतलब वो कहते हैं ना मैं कॉस्टली आपको ड्रेस भी दूंगा, वो कहते हैं मेरे ख्याल से तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतने को पैसे दिए होंगे जो तुम सारे मुझे ऑफर कर रहे हो, तो व्हाट वुड बिकम ऑफ यू, तो इफ यू आर ऑफरिंग मी समथिंग। सो इसके बाद ये जो है ना सारा उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम मुझे जो है ना प्लीज सर्व करो, आई विल गिव यू। वो कहता है कि तुम्हारा वैगनर ये कहता है कि तुम्हारी ये औकात है कि मैं तुम्हें जो है ना एक रॉ मटन जो है ना वो दे दूं ना उसकी रान, तो उस वो तुम तो फिर भी मुझे सर्व कर लोगे। तो वो आगे से मजाक ये बनाता है क्लाउन, कहता है ना ना इतनी भी मेरी सस्ती सॉल नहीं है, कम से कम आई विल डू इट फॉर रोस्टेड जो है ना। तो ये देखें कि यहाँ पर कितना मतलब इस चीज को वो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो नहीं करता उसकी बात को, आगे से मजाक बनाता जाता है। तो क्या होता है वो आखिरकार वो स्पिरिट्स बुला लेती हैं, बिलियल एंड बेल्चर, और वो कहता है कि हाँ अब दोनों भाग जाते हैं वो दोनों मस्करे, और वो काफी फनी सीन होता है। मैंने जैसे फार्स का बताया भी था, जैसा फॉर्म ऑफ कॉमेडी, तो फार्सिकल मतलब जो है ना फिजिकल जेस्चर का सहारा लिया जाता है। अब वो कहता है कि मुझे जो है ना तुम मुझे कुछ भी मतलब चेंज कर दो, मुझे बस शेप। तो उसके बाद जो है ना वो कहता है कि मैंने ये इन स्पिरिट्स को देखा है, इनकी शेप कैसी थी। वो कहता है कि एक ही डिवल था, एक शी डिवल था। ही डिवल के सर पे एक सींग होते हैं, और शी डिवल जो है उसके क्लोवन फीट होते हैं, जिनके फटे हुए पाँव होते हैं। तो आई कैन आइडेंटिफाई देम, however both of them exist। So in this way act 1 concludes and we will start inshallah in the following lecture, we will start from act 2 scene 1। okay, so if you people have any inquiry, so I would accommodate all those things।